आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज मैं अपने मंत्री नारा लोकेश के साथ इस बेहतरीन स्कूल का दौरा करने आया हूं। आंध्र प्रदेश शिक्षा विभाग की खास पहल की वजह से प्राइवेट स्कूलों के छात्र सरकारी स्कूलों में वापस आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा पीएम श्री स्कूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर आधारित एक सफल मॉडल है। Today I came to visit this great school, Bhogapuram AP Government Model School. I accompanied my dear Education Minister friend Nara Lokesh ji. I am congratulating Andhra Pradesh government and Chief Minister Chandrababu Naidu ji, and especially my young, imaginative and good Education Minister Nara Lokesh ji. Recently, with the focus initiative of Education Department of Andhra, students from private schools are coming back to government school. This is the motto of our national education policy. Government schools should be more empowered, and fortunately this is a PM Shri school, and PM Shri school is a very successful model envisioned by Prime Minister Narendra Modi ji to create a scientific temper, multi-layer personality development of students. And what I saw in the ground level, I am very enthusiastic. Gradually, NEP has started its positive impact among the students. Andhra is doing good, and with this ground experience, we'll plan accordingly something more new. How is the technical sound? Very good preparation by Andhra Pradesh government, and they have thought many things, starting from FLN, Foundational Learning and Literacy and Numerology, to advanced entrepreneurship, to create a feeling and the skills and the entrepreneurship and the scientific understanding and the digitalization, all round. This is a multi-level, multi-dimensional personality progression they are doing, and they are focusing. Andhra Pradesh is doing good in school education and higher education. So you said that cricket-based lesson. There's a good initiative. There's a very good initiative, and now NEP has recommended how to implement embedded technology in a big way for the learning. This is a practical example we have shown, and this is a quick reckoner, at an instant level they can assess the students how they are performing. They can correct themselves also. Lot of good initiative has taken. Sir, what is the future plans for PM Shri? PM Shri is going to be exemplary schools for the states. Around 15,000 schools are working in the different part of country. Lot more schools are also envisioned by respective state governments. We have to give focus. If by 2047, if India has to develop, the school education is the priority. There is a consensus among the society and state governments and union government today. We have to give priority to our school education. समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा कि यह मामला राष्ट्रव्यापी हो गया है। यह उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, यह करोड़ों भक्तों से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत टीम बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। ट्रस्ट को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था और सभी पदाधिकारियों को हटा देना चाहिए था, तभी एसआईटी अपनी प्रभावशीलता साबित कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ परेशान हैं। वे अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और पीडीए से घबराए हुए हैं। 2027 के आगामी चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा और यह भी कहा कि उनकी सरकार राम मंदिर के मुद्दे के दम पर सत्ता में आई थी और राम मंदिर की वजह से ही उनकी सरकार गिरेगी। प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा और चंदा दो मामले हैं। चंदा तो तब है जब मंदिर बना नहीं था, तब से चंदा चल रहा है बहुत दिनों से, और चढ़ावा की शुरुआत हुई है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई 24 में, तब चंदा, तब चढ़ावा बहुत बड़ी तेज गति से एक दिन में 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान लोग आते थे और पूरे देश के आते थे। ये मामला राष्ट्रव्यापी हो गया है। अब ये यहाँ के योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश का तो मामला रह ही नहीं गया है। बेकार में योगी जी बोलते हैं
ये तो राष्ट्रव्यापी मामला है और राष्ट्रव्यापी और बड़ा मामला है। ये करोड़ों करोड़ों आस्थावान लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, जिनकी संख्या करोड़ों में है, असंख्य है। और इसका ईमानदारी से अगर बात की जाए तो इसकी जांच पड़ताल ऊपर से होनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से एक टीम गठित हो और टीम में बहुत ही जिम्मेदार बड़े अधिकारी हों, तब तो कुछ संभावना है। और जांच एसआईटी का गठन हो गया, जो लोग हैं सब न तो हटाए गए, न तो बाहर किए गए मंदिर से, तो उनको सबसे पहले मंदिर से बाहर कर देना चाहिए और ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए था और जितने पदाधिकारी हैं बाहर कर देना चाहिए था, तब एसआईटी अपना काम शुरू करता। ऐसा नहीं किया तो योगी जी तो परेशान है, क्या करें। योगी जी तो हर चौथे 25 दिन जाते थे अयोध्या और सप्ताह में दो दो बार योगी जी आते थे। तो क्या योगी जी को ये लूटपाट की जानकारी नहीं हुई थी? जरूर रही होगी भाई, मुख्यमंत्री हैं, सरकार के बड़े हाथ होते हैं, खुफिया होता है, इंटेलिजेंस तमाम सोर्सेज होते हैं। तो अब तो कुछ कर नहीं पाए, तो अखिलेश जी पर तो इसलिए बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हैं, पीडीए की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। और आने वाला 27 का चुनाव पूरी तरह से बीजेपी जो आज कटघरे में है, पूरी तरह से ये पराजित होगी और राम मंदिर से ही इनकी देश में सरकार बनी थी और राम मंदिर से ही इनकी सरकार जाएगी। पहले जाएगी उत्तर प्रदेश में 27 में, बहुत, क्योंकि आज अगर विश्वास किसी पर बढ़ा है तो अखिलेश यादव बढ़ा है और विश्वास घटा है तो बीजेपी घटा है और बीजेपी सरकार से घटा, इसलिए जानते हैं, इसलिए परेशान है झूठ मूठ के। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से निकल ही नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात नहीं कह पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे सीधे पप्पू यादव ने ये आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात नहीं कह पाते हैं। 10 सालों से योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वे अपनी बात नहीं कह पा रहे और बीजेपी और आरएसएस के पास इसके अलावा कोई भाषा नहीं है। 12 सालों से 13 सालों से नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी या राजीव गांधी से नहीं निकल पा रहे हैं, छटपटाते हैं, अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। और 10 सालों से जोगी जी, मुलायम सिंह और समाजवादी और अखिलेश से नहीं निकल पाते हैं, अपनी बात ही नहीं करते हैं कि तुमने डेवलपमेंट क्या किया, चौपट क्यों किया, अखिलेश ने जो डेवलपमेंट को बढ़ाया था उसके बाद तूने क्या किया, कौन सा डेवलपमेंट किया, कि नफरत पैदा सिर्फ किया। तो इनकी यही इसी बस बीजेपी आरएसएस के पास इसके अलावा कोई भाषा तो है नहीं। नफरत की बात जितना कर लो, अब बीजेपी तो अब जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब नफरत पैदा होने की संभावना लग रहा है कि अब छीन हो रही है, तो अब जातीय बाइफर्केशन कर रहा है। बीजेपी नेता किया घोष ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बोल ही दिया है कि बीजेपी जो संकल्प करती है वो करके दिखाती है, चाहे वह यूसीसी हो, महिला सुरक्षा हो या प्रदेश में कानून का शासन वापस लाना हो। हर चीज जो कहा है वह होकर रहेगा
और यूसीसी का विरोध जो भी कर रहे हैं उन्हें यह बात पता होना चाहिए कि यह बीजेपी है, यह घुटने नहीं टेकती। यूसीसी जो बहुत सालों से मांग थी वह लागू होकर रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ अपने वोट बैंक को जानती है, इसलिए उन्होंने अवैध तरीके से मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में लाकर जो वाकई में ओबीसी हैं उन्हें वंचित किया था। देखिए, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोल ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प करती है, संकल्प पत्र या घोषणा पत्र कुछ भी बोल ले, जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे इस प्रदेश में कानून का जो शासन है उसको फिर से वापस लाना क्यों ना हो, हर चीज जो कहा गया है वो होके ही रहेगी। और यूसीसी के विरोध जो भी कर रहे हैं उनको ये पता लगना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई दुर्बल सरकार नहीं है जो घुटने टेक के अपने कोर दुधेल का वोट बैंक के सामने घुटने टेक दे। तो ये जो यूसीसी जो मांग है हमारी बहुत सालों से मांग थी वो वास्तविक होके रहेगी। कल बंगाल असेंबली ने ओबीसी अमेंडमेंट बिल को पास किया, 77 मुस्लिम कम्युनिटीज को इस लिस्ट से बाहर रखा। ममता बनर्जी जी सिर्फ अपना वोट बैंक जानती है और इसीलिए वो बैकडोर से अवैध तरीके से वो मुस्लिम को उनको ओबीसी के कैटेगरी में घुसा के, जो वाकई में ओबीसी है, जिनको वाकई में रिजर्वेशन मिलना था, उनको वंचित किए थे। तो अब जाके इस बार जाके इतने सालों बाद जाके सटीक जो ओबीसी का जो बिल है, इसके जरिए जो सटीक ओबीसी है उनको न्याय मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ना कि सिर्फ वोट बैंक देख के, ना कि सिर्फ जात देख के, धर्म देख के, जो ममता बनर्जी जो गंदा खेल उन्होंने रची थी, तो वो अब बंद हो गया है। और ये जो ओबीसी वाकई में पश्चिम बंगाल के जो बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको अभी मिल जाएगी अपना न्याय। बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा है कि वे विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, ये वे लोग थे जो राम के अस्तित्व को चुनौती देते थे। इनका आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहा था, श्रद्धा में इनका कोई योगदान नहीं था। ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता आज तक वहां नहीं गए, इनके मन में श्रद्धा का तर्पण करने की साजिश है। तो मैं किसी को लेकर क्या बोलूंगा। मैंने तो पहले दिन जब एनआई पे आए थे तो मैंने पहले ही दिन कहा था, समाचार जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे उस पर भी मैंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी के लोग, जो राम मंदिर में तमाम तो ऐसे थे जो राम के अस्तित्व को चुनौती देते थे। कहते थे कि यहाँ पर शौचालय बना दो, कोई कहता था यहाँ पर अस्पताल बना दो, कोई कुछ और स्कूल बनाने की बात करते थे। आज तक जिनका आंदोलन से संबंध नहीं रहा, आज तक जो निर्माण से उनका किसी का संबंध नहीं रहा, आज तक श्री रामलला का मंदिर बने कोर्ट की पैरोकारी में जिनका कोई विरोध पक्ष के अलावा कोई समर्थन का पक्ष नहीं रहा, यानी जो श्रद्धा की बातें हो सकती थी, श्रद्धा का अर्पण हो सकता था, उसमें कोई योगदान नहीं। अब जब उनकी श्रद्धा को बदनाम करने के लिए, यानी श्रद्धा का तर्पण करने की जो साजिश है, राम ये भाजपा के खिलाफ थोड़ी है, ये किसी और के खिलाफ थोड़ी दुष्प्रचार सब कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि रामलला के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाए, वहां पर जो चढ़ावा से जो सामाजिक काम होते हैं मंदिरों के वो बंद हो जाए। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत सारी चीजें होती हैं। और ये एक चीज और है कि अगर श्रद्धा थी तो सारे लोग क्यों नहीं गए। मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस के शीर्ष नेता आज तक नहीं गए, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता आज तक नहीं गए, कम्युनिस्ट पार्टी के कोई भी नेता आज तक नहीं गए। क्यों? क्योंकि तब श्रद्धा का भाव जागरण करना था। अब श्रद्धा के भाव का जब अर्पण करना था तब नहीं गए। अब जब उस श्रद्धा का तर्पण करने की साजिश आपके मन में आ गई है तो आपकी साजिश कोई पूरा थोड़ी होने देगा। राम भक्त भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव रखते हैं। और अभी तो देखिए, मैंने पहले ही दिन कह दिया था, आज से 15-20 दिन पहले ही, कि अभी लाइन लगेगी। अभी जिनकी नानी जी ने मना किया था वो दर्शन कर आए,
अभी तमाम लोगों के और परिवारजनों ने और सहयोगियों ने कहा था, वो भी अब लाइन से आप देखिए घंटी और मजीरा तिलक और वो, अरे अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे, काशी मथुरा के दर्शन होंगे, और रामलला के प्रति तो लेट लेट के परिक्रमा कर करके न पूजा करें चुनाव के पहले, तब आप कह दीजिएगा। क्योंकि काशी रामलला अब इसलिए याद आ रहे हैं कि चुनाव है। और आपने देखा होगा कि जब सनातनियों ने दंड दे दिया बंगाल में, सनातनियों ने दंड दे दिया बिहार में, सनातनियों ने जो सनातन का विरोध करने वाले तो दंड दे दिया आसाम में, और तो तमिलनाडु में जो कोरोना और जो डेंगू बोल रहा था जो स्टालिन, उनको भी लोगों ने वहां से भगा दिया। अब उनको लगा कि अब सनातन से विरोध करके अब बस नहीं चलने वाला, तो रामलला की शरण में जा रहे हैं। इनकी राजनीतिक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सभी जानते हैं कि हम बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने आज डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर एक खास इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू की है। एनडीएमसी इलाकों में अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन पार्क करते हैं तो आपको आधा ही शुल्क देना होगा। ऐसी कई सुविधाएं दी हैं। इस पॉलिसी के कई फायदे हैं और दिल्ली को इसका लाभ उठाना चाहिए। देखिए, अभी हम सबको जितना जरूरी सारे काम है, उतनी जरूरी अपनी सांसें हैं। लोग लंबी आयु तक जिए, और सभी को पता है कि जिस प्रकार से पोल्यूशन फैल रहा है, उसको रोकने का काम हम ही आप कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने आज साहेब सिंह वर्मा जी के पुण्यतिथि पे विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, अभी कई जगह आप देखेंगे जहां पार्किंग है, जैसे आपको एक उदाहरण दूं मैं, एनडीएमसी एरिया, वहां पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क करेगा उसको आधा ही पैसा लगेगा पार्किंग का। ऐसे कई सारी सुविधाएं दी गई हैं साहेब सिंह वर्मा जी के इस पुण्यतिथि पर, क्योंकि साहेब सिंह वर्मा जी हम सबके लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है गुड गवर्नेंस के, लोगों के दिलों को जीतने के लिए। तो इस अवसर पे आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी किया है, जिसके बहुत सारे फायदे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल खरीदें, इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदें, तो आपको बहुत तरह के फायदा होने वाला है और उसका लाभ दिल्ली को लेना है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि हमने हमेशा यूसीसी का विरोध किया है। यह बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। यह आम तौर पर माना जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की सहमति के बिना यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। अब जो यूसीसी लागू किया जा रहा है उसका असर मुसलमानों और ईसाइयों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमने 3 तलाक को खत्म करने का समर्थन किया था, लेकिन इस यूसीसी का समर्थन नहीं करेंगे। अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पर एक रिपोर्ट देगी। हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, ये जितना आसान सा दिखता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भक्ति के नाम पर जिस प्रकार लोगों ने गबन किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि यह जितना आसान दिखता है उतना ही पेचीदा है। भक्ति के नाम पर लोगों द्वारा गबन किया गया है। जमीन और चंदे को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। अयोध्या से लेकर उज्जैन तक इन लोगों ने गबन का मॉडल डेवलप किया है। जो ट्रस्ट इसे चला रहा है उस पर किसी को ट्रस्ट नहीं है। देखिए, ये जितना आसान सा दिखता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भक्ति के नाम पर जिस प्रकार लोगों ने गबन किया, धोखाधड़ी की। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि कई बार इस तरह के सवाल उठे, जमीन को लेकर, चंदे को लेकर के लिपापोती की कोशिश हुई। अब आप देखिए, अयोध्या से लेकर उज्जैन तक इन लोगों ने उगाही का, गबन का क्या मॉडल डेवलप कर लिया। अब मतलब सवाल तो कायदे से मैं कहूं कि उन लोगों से भी होना चाहिए जिन्होंने इस संरचना का निर्माण किया, ट्रस्ट वगैरह। और ये यकीन मानिए कि वो जो ट्रस्ट है जो रन कर रहा है, उसमें किसी का ट्रस्ट नहीं है, साधु संतों का भी नहीं है।
आम जो श्रद्धालु हैं उनका भरोसा उठ गया है। मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की चीज आज से पूर्व नहीं हुई थी, और अभी भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मार्क माय वर्ड्स, बड़ी मछलियां बचा ली जाएंगी। हाँ, छोटे मांगुर कबई पकड़े जाएंगे। बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कानून का राज होता है और कानून सम्मत जांच, पूछताछ, कार्रवाई होगी, सभी तथ्य सामने आएंगे, कोई बेगुनाह फंसेगा नहीं, कोई गुनाहगार बचेगा नहीं। देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कानून का राज होता है और कानून सम्मत जांच, पूछताछ, कार्रवाई होगी, सभी तथ्य सामने आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई बेगुनाह फंसेगा नहीं, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कानून का राज होता है और कानून सम्मत जांच, पूछताछ, कार्रवाई होगी, सभी तथ्य सामने आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई बेगुनाह फंसेगा नहीं, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। देयर इज ए रूल। कांग्रेस सांसद तनोज पुनिया ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोका जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ नेताओं को नहीं आम कार्यकर्ताओं को भी रोका जा रहा है, कुछ न कुछ ये छुपाना चाह रहे हैं, तभी यह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई विरोध प्रदर्शन करने नहीं बल्कि दर्शन करने जा रहे थे। यह सब जनता समझ रही है कि राम मंदिर में इन्होंने गड़बड़ की है और ये चीज़ों को सामने भी नहीं आने दे रहे हैं, खानापूर्ति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी। देखिए, तो बात तो स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि जिस प्रकार से ये रोक रहे हैं, दर्शन करने जा रहे थे और वहाँ पे चीज़ों का जायजा लेते समझ में आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को जो है एकदम से रोक दिया जा रहा है, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, और सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि आम कार्यकर्ताओं को भी के घर पुलिस भेज करके उनको रोकने का काम किया है। तो कुछ ना कुछ दबाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हैं, तभी ये काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई वहाँ प्रोटेस्ट का कोई इशू नहीं था, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करने जा रहे थे, केवल दर्शन करने जा रहे थे। और ये इस तरह के हरकतें जैसे ये कर रहे हैं तो जनता अब देख रही है और समझ भी रही है कि जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ जो एक विषय है, जो राम मंदिर है, उसमें इन्होंने घपला किया है और ये चीज़ों को सामने भी नहीं आने देना चाह रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, असली आरोपियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मेन लोगों को जाने दे रहे हैं, लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। तो ये अब जनता को स्पष्ट हो गया है और कांग्रेस पार्टी इस तरह से इनको छोड़ेगी नहीं, लगातार जो है मुद्दे को उठाती रहेगी, जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 690 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आज राम भक्ति की वकालत कौन कर रहे हैं, आज वे लोग उनकी वकालत कर रहे हैं जो 2017 से पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत कर रहे हैं। के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव, रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उसका परिणाम भी मिला है। विरासत को सम्मान दे करके कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाता है,
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने को आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अयोध्या दौरे से पहले अजय राय को कथित तौर पर नजरबंद किए जाने पर कहा कि नकली एसआईटी बनाई गई। बीजेपी की डाकुओं ने जो डालने का काम जो शुरू किया, वह वास्तविकता देखने के लिए कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, और उनके साथी अनुमति के साथ जाने वाले थे, लेकिन सरकार डर गई, इसलिए उन्हें नजरबंद किया गया। ये उन्होंने कहा कि ये जनता के सामने वास्तविकता नहीं आने देना चाहते, लेकिन जनता सब जानती है। डाकुओं ने जो डाका मारा है वो छुपाने के लिए कोशिश उनकी शुरू है। नकली एसआईटी बनाई, एसआईटी का कोई मतलब नहीं है उसमें। अभी भी अयोध्या में वहां के पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल नहीं किया गया। तो ये डाकू जो है बीजेपी के, जो भगवान श्री राम जी के नाम से जो लूट मचाई है, डाका डालने का काम शुरू किया है, वो वास्तविकता देखने के लिए कांग्रेस के हमारे वहाँ के अजय राय, ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया और उनके साथी जाने वाले थे और विद परमिशन जाने वाले थे। सरकार डर गई और उनको अरेस्ट कर लिया उनके घर से। तो इसका मतलब यह है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है और ये वास्तविकता जनता के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन जनता जान गई है कि बीजेपी भगवान श्री राम जी के नाम से डकैती डाल रही है, या हिंदुस्तान की जनता जान गई है। कितना सही है इस तरीके का कदम उठाना सरकार की ओर से? ये तो है ना, चोरी छुपाने के लिए, डाका छुपाने के लिए ये डाकू लोगों ने उस तरह का काम किया है। अगर मुझे मेरे श्रद्धा स्थान में मेरे भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में जाना है, तो ये कौन होते हैं बीजेपी वाले?
क्या भगवान श्री राम जी को हमने लाया ये बताते हैं? अरे भगवान श्री राम जी ने तो हमारी ये दुनिया बनाई है, लेकिन ये खुद बोलते कि हमने भगवान श्री राम जी को लाया है, भगवान राम को लाया है। तो ये इतने ऊंचे और एकदम घिनौनी राजनीति आज हिंदुस्तान में बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और बीजेपी पूरे उस तरह से इस देश की जनता के साथ व्यवहार कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।